हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज फटाक फटाक से पढ़ेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ है रिमेम्बर, मतलब मेमोराइज करने के लिए हम बहुत कुछ चीजें पढ़ेंगे। But the first thing I can say that please revise it. If I'm teaching you something, please go and revise it thoroughly. You will get a better idea when we, taught in our next class. You will get a better idea how the new things gonna look like. Okay. Now, see, when we talk about chemical reactions and equations, there are a lot of chemical reactions and equations happening. There are a lot of chemical changes and physical changes are happening every day. We see in our surroundings, in our environment, that there is a chemical change and physical change in our surroundings. Now, to be very honest, if we look into ourselves now, everyone goes through definitely minimum one physical change or chemical change in a lifetime. Everybody every day go through a physical change or chemical change. If I cut my hair now, it will look like a physical change. Everything is correlated. So science is a subject which is very, very, very relative. Relevant. Okay, sorry. Okay, now chemical reactions and equations will learn about types of chemical reactions. In previous class, I told you about the evolution of gases. There are a lot of things in our chemical reactions, like the change of state, change of color, everything, evolution of gas, change in temperature, everything. And these things, will let you know that a chemical reaction is happening. अब chemical reactions हो रहा है, इसके वजह से हमें पता चला है chemical reactions, ये सब चीजों को लेकर हमें पता चल रहा है. ओके, हमें तो ये पता है कि कोई न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म होता है वहां से केमिकल रिएक्शंस होता है, उसके साथ कुछ चेंजेस भी होने लगते हैं. अब खाली केमिकल रिएक्शन में न्यू प्रोडक्ट सब्सटेंस फॉर्म होने से नहीं होता, ऑब्वियसली होता है, बट उसके साथ कुछ एड ऑन चीजें भी होती है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, evolution of gases is like any kind of gas that evolved during a chemical reaction or during a new product formed. Now, when a new product or new substance is formed during a chemical reaction, different kinds of gases will obtained. Like generally, we, get to see hydrogen and carbon dioxide, but there are a lot of like sulfur dioxide, sulfur trioxide, even carbon monoxide. There are a lot of gases that evolve during chemical reactions. So in which reaction, in those reactions, when an evolution of gas obtained, or when a new gas is evolved with a new substance formed, is called as a chemical reaction, right? Now, just look into this slide. Some chemical reactions are characterized by evolution of gas. Like when zinc granules reacts with dilute sulfuric acid, then hydrogen gas is produced. Now tell me, how does zinc look like? कभी कभी ये जिंक है ना, वो कैसे दिखता है, मतलब if we talk about any metal, so any metal has a shining surface, we know that. But tell me, how does this metal look like? Okay, so then, okay, so zinc is a metal which looks like a grayish white. Okay, you can see grayish white, silverish types of metal, type of metal. Okay, now ये जो जिंक है ना, वो बहुत ही प्यारा मेटल है. वो जब रिएक्ट होता है वो एक सॉल्ट छोड़ के जाता है. ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं छोड़ता, हर जो मेटल होता है वो अपना एक सॉल्ट बना के जाता है. तो यहाँ पे जो ZnSO4 निकला ना, वो एक सॉल्ट निकला, बट उसके साथ क्या निकला, एक हाइड्रोजन गैस निकला.
अब हाइड्रोजन, पता है गैस कैसा है? हाइड्रोजन एक अजीब सा गैस है यार, कहीं पे भी निकल जाता है। नहीं, तो हाइड्रोजन गैस तब निकलता है जब कोई भी कंपाउंड में हाइड्रोजन हो, मतलब कोई भी कंपाउंड। अभी सोचो, अगर मैं जिंक के साथ कुछ और लेती, मतलब मैं कुछ कार्बोनेट जैसा कुछ रिएक्ट करवा देती एसिड के बिना, तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलता? नहीं। क्यों नहीं निकलता? बिकॉज उसमें हाइड्रोजन कंपाउंड है ही नहीं ना, हाइड्रोजन एलिमेंट है ही नहीं। तो एनी मेटल हाइड्रोजन गैस तभी निकलेगा जब कोई भी कंपाउंड जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा उसी में हाइड्रोजन होगा, देन जाके वो हाइड्रोजन गैस निकले। So Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. So your hydrogen gas is evolved. Okay, along with zinc sulfide. Now, looking into another example, let me replace the Zn with Mg. Okay, magnesium. तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। कॉपर के साथ रिप्लेस कर ले तो हमें क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट। तो okay, you will get to learn a lot about these reactions. मतलब कैसे पता चला? अभी तुम लोग पूछोगे कैसे आपको तो पता चला कि H2 गैस निकला? तो इस बारे में भी हम थोड़े नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ओके, कुछ देर में। नाउ कम टू दिस। यहाँ पे मैंने जो बोला कि जो जिंक है ना, यहाँ पे वो कॉनिकल फ्लास्क में उन्होंने क्या लिया, मतलब हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में ना उन्होंने लिया जेड, मतलब जिंक, उसके ऊपर उन्होंने डाल दिया हाइड्रोजन, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड। ना जो सल्फ्यूरिक एसिड उन्होंने डाला तो वहां पे कंपाउंड फॉर्म हुआ, कुछ देर बाद वहां पे कंपाउंड फॉर्म हुआ जिसका नाम है जिंक सल्फेट। और उसके साथ वो एक बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकला, मतलब वो हाइड्रोजन गैस है ना, वो बबल की तरह निकल गया। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कीवर्ड्स दिए गए, बिकर, मैग्नीशियम एंड डाइल्यूट एसिड। अभी मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि डाइल्यूट एसिड जो है उसको तुम ये ले लो कि वो H2SO4 है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ जब सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो फिर अगर हम मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा Mg plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2। तो फिर हमें मिलेगा Mg plus H2SO4 gives MgSO4 plus H2। हमें यहाँ पे मिल गया क्या? हाइड्रोजन गैस के साथ मैग्नीशियम सल्फेट। ये तो तुमने 9th में पढ़ा होगा कि कैसे यहाँ से निकला ना। When hydrochloric, ये गैस नहीं है, एसिड है। ओके, when hydrochloric acid is poured over a sodium carbonate, then the carbon dioxide gases evolve। ना मुझे बताओ, अभी जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है, मतलब सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब क्या है? HCl है, राइट? तो फिर जब HCl में हमने क्या रिएक्ट, मैं नीचे लिखती हूँ क्या, हमने HCl में रिएक्ट करवाया Na2CO3 को। ओके, थोड़ा करेक्ट कर लो। ओके, हमने Na2CO3 को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा बताओ? अभी देखो, H जो है, Cl जो है वो Na के पास चला जाएगा। क्यों? Cl क्या है? नेगेटिव आयन है, तो किसके पास जाएगा? पॉजिटिव आयन के पास। तो हमें मिलेगा NaCl प्लस, तो हमें मिलेगा NaCl प्लस, अभी यहाँ पे गैस निकल जाएगा H2O प्लस CO2। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब मुझे बताओ ये प्रेसिपिटेट क्या चीज है? तो प्रेसिपिटेट एक चीज है, लाइक कोई चीज ना जो सॉल्युबल नहीं है वाटर में। ओके, अब हमें पता है जो चीज ना पानी में घुलता ही नहीं है, मतलब कोई दो चीजों को हमने रिएक्ट करवाया और पाया क्या? वो घुलता ही नहीं है। अब वहां पे जब नहीं घुलता तो वो भी तो कंपाउंड है ना, वो ऐसा ही कंपाउंड निकला जो घुलता ही नहीं है, तो क्या कंपाउंड नहीं निकला? निकला। तो फिर वो जो क्या होता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट निकलता है जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान वो
फॉर्म होता है। ओके, तो अगर हम ऐसा कुछ ले ले, मतलब सोचो कि कोई भी ऐसा चीज है, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो ये जो पिक्चर है ना, ये किसका पिक्चर है? इसको हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। ओके, जब ऐस देखो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं ना, जो प्रोडक्ट्स ना एक दूसरे के साथ घुलते नहीं है। जैसे सोचो, हम दोस्ती करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं क्या? नहीं, नहीं घुल सकते, एक दिन में नहीं घुल सकते। कुछ लोगों के साथ दोस्ती करने में ऐसा होता है कि दोस्त तो है पर बात नहीं हो रही, राइट? ऐसा भी होता है। तो सोच लो, ये प्रेसिपिटेट एक ऐसा दोस्त है जो दोस्त तो है पर उससे हमारी बात नहीं हो रही है, ठीक है? उसी टाइप का है ये प्रेसिपिटेट। ओके, नाउ देखो, जो पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड की जो सोल्यूशन को हमने जब लेड नाइट्रेट एक प्रोडक्ट के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो वहां पे ऐसा ना एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट निकला। तो यहाँ भी जो प्रेसिपिटेट निकला ना, मतलब वो क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस वहां से निकला। तो इस रिएक्शंस को, ये रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में सिर्फ सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब उसी रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। ओके, इसी तरह बहुत सारे रिएक्शंस है, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं करवाऊंगी, बट आपको ये पहले ट्राई करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको खुद से आप बुक से देख के कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है? तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको एग्जाम्पल की तरह दिखा दूंगी, बट कुछ चीजें आपको खुद करना पड़ेगा। ये हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है? जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम उसको लास्ट में करेंगे। ओके, नाउ चेंज इन कलर। अभी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में ना, पता है ऐसा होता है कि कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और वहां पे उन दोनों के जो कलर में वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? मतलब जैसे कि रस्ट बोल दो, ठीक है? लोहे जिस कलर का था, रस्ट लगने के बाद वो ना पाउडरी जैसा कुछ हो गया, रेड रेड जैसा हो गया, ब्रिक रेड जैसा। अब मुझे बताओ उसका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ना, तो अब अब किसी को तुमको जादू दिखाना है ना, तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिएक्शन है। ओके, वेन अच्छा मुझे पता है सिट्रिक एसिड किस में होता है? बहुत मतलब सिट्रस फूड में होता है, राइट? सिट्रिक एसिड होता है, मतलब जैसे किस में होता है? ऑरेंज में होता है, लेमन में होता है। अभी जो सिट्रिक एसिड है ना, जब उसको हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसके जो सोल्यूशन, अच्छा पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन वो दिखता कैसा होगा? वो ये जो पर्पल है ना, ये जो पर्पल कलर सोल्यूशन है ना, डिट्टो ये दिखता है। यही है पोटेशियम परमैंगनेट, ये पर्पल कलर का है। जिन लोग बीटीएस आर्मी लोग हैं उनको ये कलर बहुत पसंद आता होगा। ओके, नाउ ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसके साथ अगर इसके सोल्यूशन में हमने सिट्रिक एसिड ऐड कर देगी, ये जो कलर है ना वो पूरा वैनिश हो जाएगा, बिकम कलर ऐसे पानी की तरह दिखने लगेगा। तो हो गया ना जादू। तो अपने दोस्तों को क्या बोल सकते हो कि हम जादू सीख गए। ओके, सो कोई भी चीज आप ये देखो कि बहुत सारी चीज, मतलब आप सोच रहे हो ना ये जादू की जरूरत, तो साइंस का खेल होता है, सब साइंस का खेल होता है। साइंस ना आपको जादू भी दिखाता है, आपको एंटरटेनमेंट भी करता है। आप जो भी चीज आप आजकल देख लो, आजकल तो टूथब्रश में भी साइंस लगाएगा। आज वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश आ गया, हम हमने सपने में नहीं सोचा था हम इलेक्ट्रिक टूथब्रश में से दांत को ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करेंगे, राइट? उसी तरह बहुत सारी चीजें चेंज होते हैं, और ये सब होता है साइंस के वजह से, राइट? तो साइंस एक बहुत ही फन सब्जेक्ट है, जब हम इंटरेस्ट देके पढ़ने लगेंगे तो हमें बहुत मजा आने वाला है। नाउ ये जो साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, और यहाँ पे ये जादू देखने का बड़ा मजा आता है। कभी देखा है, मतलब एग्जीबिशन में हम बचपन में जाते थे, और वहां पे कोई हमें साइंस प्रोजेक्ट में मतलब कुछ अनोखा सा दिखा देता तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे यार ऐसा भी होता है। तो आप सबके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए जो आपने किया होगा बचपन में। आपके ये साइंस एग्जीबिशन में गए होंगे। और मतलब स्टेट्स में, हमारे स्टेट में तो ये है कि साइंस की जो
बहुत सारे साइंस सेंटर होता है, वहां पे बहुत सारे ऐसा होता है, आधा सिर कट गया, कहीं पे छोटा दिख रहा है, कहीं पे बड़ा दिख रहा है, वो साइंस का ना जादू होता है। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन में जब हमने डाल दिया सिट्रिक एसिड, तो हो गया जादू। तो ये जो जादू हो गया इसको, और ये सोल्यूशन बन गया पानी। अब कोई मैजिशियन ना ये श्योर अपने शो में इसको डाला होगा, किसी ना किसी ने तो डाला ही होगा अपने शो में। ओके ना, ये हो गई कलरलेस होने के बाद। अब कलरलेस क्या होता है, सिर्फ कलरलेस थोड़ी होता है, मतलब कोई भी चीज सिर्फ हमने उसमें ये डाल दिया और कलरलेस हो गया, नहीं। बहुत सारी चीजों में मतलब बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो एक कलर के होते हैं दूसरे कलर में चेंज हो जाते हैं, राइट। तो जैसे कि रस्ट था, आयरन जिस कलर में दिखता था वो गया, रस्ट होके उसका कलर चेंज हो गया। उसी तरह जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में डाल दिया, तो हमें मिल गया वो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ने उसको जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन को पूरा बदल डाला। तो वहां पे क्या हुआ, पूरा सोल्यूशन बदल के हमें मिल गया सोल्यूशन, ऑरेंज कलर से ग्रीन कलर का हमें मिल गया, राइट। हम ये सबके जो एग्जाम्पल्स है, इक्वेशंस है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम इसको बाद में जानेंगे जब हम इसके जो, हम पहले इसके कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर वापस आएंगे स्लाइड पे, वापस रिवीजन करेंगे, और इसके बाद इसका जो रिएक्शंस होता है उसको पढ़ेंगे, और उसी के साथ उसको बैलेंस भी करेंगे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, चेंज इन टेम्परेचर। अभी सोचा है कभी, अब तो मैं फिजिकल चेंजेस की बात कर रही हूँ, बट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैंने आपको जोर से थप्पड़ मारा, सोचो मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा, तो ये गाल थोड़ी देर के ना रेड हो जाएगा, मतलब चेंज इन कलर। अभी न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं होगा, कलर चेंज हो गया, लाल हो गया, अभी वो चला भी जाएगा, इसलिए वो केमिकल नहीं। ओके, अब ये चेंज हो गया, फिर क्या हुआ कि ये थोड़ा गर्म हो गया, मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर की भी चेंज हो गई। ओके, सो कुछ चीजें ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके ना उनके अंदर के जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है। अभी मैंने आपको काइनेटिक एंड सॉरी मैंने आपको बताया था। ओके, सो मैंने आपको ये नहीं बताया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस ना होते कैसे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स, मतलब एक फिजिकल चेंज कैसे होता है और एक केमिकल चेंज कैसे होता है। कोई भी चीजों में ना फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कैसे होता है। अभी देखो कि पहले हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है वाटर। ओके, हम पता है वाटर के ना तीन स्टेट होते हैं, लाइक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ना वो जब सॉलिड स्टेट में वाटर होता है, तो उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं ना वाटर मॉलिक्यूल्स के, जो मतलब सोचो कि एक आइस है, आइस के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे के साथ साथ बाउंड होके बैठे हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सोचो कि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनके बीच डिस्टेंस बहुत कम है, राइट। इसीलिए तो वो एक सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो पास पास होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, अपने मतलब वो बहुत कम डिस्टेंस होता है। और हमने क्या पढ़ा था, द डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने पढ़ा था दैट डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आज का ऐसा पढ़ा था हमने, ग्रेविटेशन में हमने नाइन्थ पे नहीं पढ़ा था। सो हमें क्या पता चला कि जितना डिस्टेंस वो जो कम होता जाएगा ना उतना फोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब कोई चीज जितना पास होता जाएगा उसके भीतर उनके जो फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बढ़ता जाता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो फिर सॉलिड में ना आइस में, तो वाटर के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत तगड़ा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अभी मुझे इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कोई भी चीजों, कोई भी सॉलिड चीजों को लिक्विड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, द वन ओनली वे इज टू हीट इट, राइट। लाइक इन जनरल इसको हम क्या करते हैं, हीट कर लेते हैं। जब हीट करते हैं ना क्या होता है, अभी सोचो तुम लोग एक जगह पे बैठे हो, एक क्लासरूम में बैठे हो,
अपने बहुत गहरी दोस्त के साथ बहुत गहरे बातें कर रहे हो, अचानक से कोई आएगा और बोले मैम आ रहे, तो क्या होता है, तुम दोनों के बीच तो जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, तुम्हारे जो बातों के बीच जो डेंसिटी थी वो घट गया और तुम लोग चले गए, दूर बैठ गए और बात नहीं कर पाए। अभी नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारी क्लास में मैम आ गई तो। उसी तरह जब दो लोगों के मतलब दो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स अपने अंदर मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अभी मैंने उसको हीट दिया। ओके, जब मैंने उस चीज में हीट डाला तो क्या होता है ना, वो दोनों मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना वो बढ़ता जाता है। अब ये हमें पता है, तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो एक दूसरे को अभी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कि नहीं। अपना एक एनर्जी बढ़ जाता है तो डिस्टेंस मेंटेन करते कि नहीं। अभी तुम भीड़ में जा रहे हो, गर्मी लगी रही है तो तुम जाओगे ना दूर, गर्मी बढ़ेगी तो हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते। जब हमने डिस्टेंस मेंटेन किया तो क्या हुआ, हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटा, और फोर्स घटा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गया टेल लेने, मतलब वो पूरा गया, दूर दूर चला गया। धीरे धीरे जितना स्ट्रॉन्ग था वो नीचे 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 आ गया उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो उन्होंने एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होने लगे, सेपरेटली लिक्विड स्टेट में आकर पहुंच गए। नाउ अभी मुझे फिर से इनको अभी मुझे लग रहा है इनको ये क्लास में एक दूसरे के पास बैठे थे, अभी वो कम बात कर रहे थे, अभी मुझे उनको दूर भेजना है। अभी मैंने उनको डेस्क उनका थोड़ा हटा दिया, अभी मैं उनको गाली देने लगी, मैंने उनको चिल्लाई और उनको बोली नहीं तुम लोग जाओ, या हो गया। अभी वो लोग दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट, अलग अलग मैंने उनको कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, उन दोनों के अंदर फाइटिंग बढ़ा दिया। उसी तरह हमने क्या किया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो डिस्टेंस होते हैं, उनके अंदर जो डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी उनको बढ़ाना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको हीट देना चाहिए। तो मैंने उसको हीट दिया और फिर से उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, एंड दैट्स व्हेन इट बिकम्स गैस। ओके, वो पूरा गया, वो स्टीम हो गया, राइट। So this is what happens when a physical change occurs. Now, ये तो रहा फिजिकल चेंज, राइट। अब हम क्या, अच्छा फिजिकल चेंज में क्या होता है, तो जो चीजें होता है ना वो वापस अपने स्टेज पे आ सकते हैं। अब केमिकल चेंजेस देखते हैं। केमिकल चेंजेस में हमने पढ़ा कि टोटली एक न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, राइट। तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है ना वो कैसे होता है, तो जनरली क्या होता है, अभी केमिस्ट्री केमिकल उनके ना कुछ अलग ही फंड है उनके दोस्ती करने का। उनका आता है कि सोचो सोचो तुम और मैं, ठीक है, अभी तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है और मेरे पास 2 है, ठीक है। मैंने तुमको बोला कि तुम्हारे पास 10 है, तुम मुझे कुछ दे दो, हम दोनों इक्वल कर लेंगे, मतलब मुझे कुछ दे दो। मैं इधर हम दोनों अगर दोस्त है, अब हमारी बॉन्डिंग कैसे बढ़ेगी, अगर हमने दोस्ती की, हमने शेयरिंग किया, अब मैं तो पता है शेयरिंग इज केयरिंग, तो हमने दोस्ती करनी थी। हम लोगों ने अरे हमको दोस्ती करनी थी, तो मैं क्या करूंगी, तुमने मुझे 2 चॉकलेट दे दिया अपनी, तो हम लोग बन गए दोस्त, क्योंकि मेरे पास नहीं थे, कम थे ना। अभी मेरे पास ज्यादा है और तुम्हारे पास कम है, तो मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, तो फिर से हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम दोनों के पास इक्वल है बट अलग अलग चॉकलेट्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से एक दूसरे को अच्छा तुम ये चॉकलेट ले लो, तो हम शेयर करके खाएंगे, शेयरिंग इज केयरिंग वाला। तो केमिकल रिएक्शंस में यही होता है, मतलब कभी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो कभी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कभी इसने इसको दे दिया, कभी उसने उसको दे दिया, और कभी दोनों एक दूसरे में शेयर कर लिया। बट वो करते क्या है, जो भी करते उन्होंने अपना दोस्ती रखा, ये गैप फिजिकल स्टेट वाला नहीं जो दोस्ती तोड़ के भाग गया, नहीं था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना दोस्ती जो है वो बरकरार रखा, कहीं से भी हो कैसे भी हो, उन्होंने उनको बस दोस्ती करनी थी, उन्होंने कर लिया। तो उसी तरह होता है केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, इधर दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर, इधर दे और दे गिव इलेक्ट्रॉन्स और दे टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच, these are the things will happen.
उसी तरह अभी जो टेम्परेचर चेंज हुआ कैसे हुआ होगा, अभी सोचो कि जो क्विकलाइम होता है, क्विकलाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर डाल दिया ना उसके ऊपर, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बुर 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 के रिएक्ट करने लगे एक दूसरे के अंदर, बहुत जोर से रिएक्ट करने लगे और वहां से निकला हीट। अभी देखो हर चीज में ना हीट नहीं निकलता, अभी हर कोई केमिकल रिएक्शन में कभी कोई ठंडा होता होगा, मतलब कोई चीज कभी नो टेम्परेचर लेस हो रहा होगा। इस चीज में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर डाला उसके ऊपर, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर हमने जब वाटर डाला तो इट बिकम्स, यू नो, its temperature gets increased, and after its temperature gets increased it will become calcium hydroxide। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता है इसको हम बोलते हैं स्लेग लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को हम यूज कहाँ पे करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, देखो कैल्शियम ऑक्साइड को ना जैसे पान में ना उसको लगा के खाते हैं, तो बहुत सारी यूजेस है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं पेंट करने के लिए। ओके, जो हमारे जो छत है, छत को पेंट करने के लिए कभी कभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो जहां पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया उसको हम बोलते हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, कोई भी रिएक्शन न्यू प्रोडक्ट उसके साथ टेम्परेचर बढ़ा दे रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जब ये जो जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड वाला बोला था उसमें भी क्या होता है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अभी हमें यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट पता लगा है कि एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें टेम्परेचर जो है कोई न्यू प्रोडक्ट के साथ बढ़ता है, मतलब इट जस्ट मिक्स, मतलब ये क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी वो लिबरेट करता है। ओके, छोड़ता है मतलब एनर्जी वो देता है, मतलब हीट एनर्जी वो देता है। तो कुछ चीज ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद उसके एनर्जी वो कम हो जाता है, मतलब वो ठंडा हो जाता है, कुछ मतलब उनका जो एनर्जी होता है वो अब्सॉर्ब करते हैं, एनर्जी अपने अंदर वो अब्सॉर्ब करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है व्हेन बैरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनियम क्लोराइड, इट फॉर्म्स बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस रिएक्शन ये क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर लेता है, तो इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना था हमने पढ़ लिया, इतना, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट वी कैन हैव नाउ। इसके अंदर से हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, वो भी कल। ओके, तो हमने आज जितना पढ़ा हम इसको थोड़ा सा, आज हमारा नहीं, और एक चीज है चेंज इन स्टेट, इसको मैं बोलूंगी बट पहले ये करें। ओके, तो पहले हम इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो आज हमने जो जो पढ़ा हम उसको याद करते हैं। पहले तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होता है। ओके, हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया। तो पहले होता है गैस इवॉल्व होता है, सेकंड होता है कोई भी केमिकल रिएक्शंस में उसका जो कलर होता है वो चेंज होता है। ओके, और कोई कोई चीज तो कलरलेस हो जाता है, उसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा, हम इसके कल इक्वेशंस भी करेंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फिर ये हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ कि जो केमिकल रिएक्शंस में उसमें जो स्टेट होता है वो चेंज होता है, वो चेंज इन स्टेट वाला तो मैंने बोला था, वो आप वो नेक्स्ट स्लाइड में वो भी मैं बोल दूंगी। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट, जैसे वैक्स है, ओके, हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं ना घर में, कैंडल, जब हम वो जलाते हैं ना तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारे चेंजेस होता है। पहले तो जो वैक्स है वो सॉलिड है, फिर उसको जब हमने जलाया तो वहां से निकला गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, और वहां से निकला वाटर। अब वाटर कैसे निकला, मतलब वो जब वो गिर रहा था ना वहां से वाटर निकला, अभी नहीं वो पानी की तरह निकला, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ निकलता। ओके, नाउ तो यहाँ पे कितने सारे चेंजेस हुए, स्टेट चेंज हुए। ओके,
उसी तरह कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी रिएक्शन में ना स्टेट्स भी चेंज होते हैं। वैसे कलर भी चेंज होता है, कोई भी रिएक्शंस में कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंजेस के अंदर हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंजेस। अभी डिटेल हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। अभी आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, प्रेसिपिटेट हम किसको बोलते हैं। आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस, एंड मैं सोच रही हूँ कि हम इसका जो क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ी क्लैरिटी के साथ करेंगे। फिर से कल इसको हम 15 मिनट्स रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद विल कंटिन्यू फर्दर। टिल देन आई होप आप ये सेशन बहुत एंजॉय किए होंगे। सो टिल देन, बाय बाय।